Rest of the thing comes afterward. What is your objective as healthcare professional, as postgraduate, as house officer, whatever, at what stage you are? What is your objective? Anyone? What is your objective? देखिए दुनिया में you must have seen यानी एक whenever there are companies built एक mission statements होते हैं. कभी सुना है ये mission statement? Which is the main objective of that company or whoever is striving for anything. That's the first thing in mind. This is the thing I have to achieve. This is my objective. So what is your objective? Let's tell me, what's your objective? And this objective means, because initially you starts with life plus professional. So even this professional objective is not enough, because first you are living, you are in this world as a human or whatever role you are playing. You should have a very clear life objective. What is your life objective? And then what is your professional objective? And then comes how to achieve this professional or life objectives. Gee, anyone? Can anyone answer, or he is clear about it? What is his life and professional objective? जी पहले मुझे लाइफ ऑब्जेक्टिव चाहिए, नहीं तो फिर मैं लाइन से शुरू करूंगा. यू हैव टू टेल. एंड इफ यू डोंट हैव अ क्लियर लाइफ ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स दिस इज अ शिप विच इज गोइंग ऑन विदाउट एनी डेस्टिनेशन or without any clear objective where you have to go. Gee, what is your life objective? To be a better Muslim and human, okay. But how you will be a better Muslim and a human? How? Anyone? What's life objective? To serve humanity. And after, we'll come after on professional objective as well. First I want a life objective. Serve humanity. Okay. Life objective. सोचा नहीं है. शिप की डेस्टिनेशन नहीं है. जी, लाइफ ऑब्जेक्टिव. Why don't we own this AC? Is it working? I hope it must be. Let's start from here, senior people. Life objective. Peaceful life. सुकून चाहिए, ठंड होनी चाहिए लाइफ. Life objective. To be a good Muslim. Okay. What is Muslim? Can you define Muslim? But it's not. It's applies to whichever religion you are following. You have to lay life according to the principle laid by Allah. That is your life objective. अगर आज तक नहीं पता तो आज क्लियर कर लें कि आपने ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारनी है जैसे आपको ऊपर वाले ने कहा है. अब वो तरीक़ेकार हर मज़हब ने डिफरेंट बयान किए हैं. बस एज लॉन्ग एज यू आर बिलीवर, यू हैव टू फॉलो द कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह. दैट इज़ योर लाइफ ऑब्जेक्टिव. There shouldn't be any confusion on that. Thank you for messaging us. So. You must be sitting here. If yeah. Oh, I'm just saying people are messaging. If you want. Oh, we can't answer it Oh, we don't right that at moment, because there must be a lot of comments going on. Yeah. So they are knowing that I am on this side. I can't answer. So just ignore that. Okay, so this is the one. अब उसमें सोच ये होनी चाहिए कि you should be doing everything, then really weighing it. Is it according to what I was supposed to do according to the principle? And there shouldn't be any other person making you accountable of that. You should be making yourself accountable for that.
कि पूरे दिन की अब जब आपने पूरी लाइफ को एक ऑब्जेक्टिव बना लिया है कि इस तरह चलना है, then you should be judging every of your act, that is it according to that or not. That is your life. Now comes to professional objective, and this professional objective is under the umbrella of life objective. Even with your professional objective, usually you are achieving your life objective as well. So what is professional objective? We are as a healthcare professional. जी, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव. अब यहाँ से शुरू करते हैं. उल्मा भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं. जी, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव. यू आर हियर एज ए न्यू FCPSP जी, प्रोफेशनल. अच्छा खासा प्रोफेशन गुजार चुके हैं. सो व्हाट्स योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव? सर्व ह्यूमैनिटी. दिस इज अ ब्रॉड. देखिए, आप लाइफ में भी यही कह रहे थे, प्रोफेशन में भी यही कह रहे हैं. लाइफ तो क्लियर है कि दिस इज, एंड सम टाइम अ लोअर प्रोफेशन में बी सिंपल, और यू कैन से अ प्रोफेशन के एक चौकीदार आपसे लाइफ के ऑब्जेक्टिव में आगे निकल जाए, एक प्रोफेसर लाइफ के ऑब्जेक्टिव में पीछे रह जाए. ये अलग है, ये अलग मामला है, क्योंकि इनका ताल्लुक वहाँ से है. आप प्रोफेशनली बड़े अच्छे हों, लेकिन अपनी जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव है उसमें इन दोनों का ख्याल रखना है कि वो प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी अचीव करनी है, बट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लाइफ ऑब्जेक्टिव, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर लाइफ ऑब्जेक्टिव्स. सो व्हाट इज योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव? Not sure. Sir, I want to have my own welfare center after achieving my destination. In a way, you people are right, but it should be comprehensive in single word. Objective तो यही होता है ना, एक थीम लाइन होती है आपकी जो which is in minimum words. 2-3 वर्ड्स में आप अपने उसको पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं. तो इसमें आप हमेशा याद रखना है टू असेस person's health problem and offer best possible solution. This is your objective here. As a student, as a postgraduate, as a doctor, you really want to achieve that skill that you should be able to assess person's health problem and offer best possible solution. और मैंने persons कहा, patient नहीं कहा. Sometimes in our OPDs there are 5 to 10% are such patients in whom you have to tell you don't have any disease. This is their solution. They are roaming around, ये टेस्ट वो टेस्ट सब कुछ करा चुके हैं, परेशान घूमते रहते हैं, हर तीसरे दिन इमरजेंसी में मौजूद होते हैं. उनको इस बात का इत्मीनान दिलाना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. So that is their solution. So whatever problem your a person is coming to you with in relation to his health, and this health is both physical and so you have to judge him comprehensively. अब उस पे मैं आता हूँ अपने काम पे. ये तो बैकग्राउंड है, and that should be very clear when you are doing anything. Even दिन शुरू कर रहे हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव जहन में रहने चाहिए कि इन दोनों ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट में आपने आज के दिन में क्या हासिल किया, और यानी अपना नुकसान किया, उससे दूर हो गए अपने मकसद से, या करीब आए या आगे बढ़े, और नहीं हुए तो क्या नया करना है अगले दिन. रोजाना क्या लम्हे घंटे हर चीज को ऑडिट करते रहना है इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि आई हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल. और फरिश्ते नहीं है, गलतियां सब करेंगे, तो वो आपको एट द एंड ऑफ द डे पता होने चाहिए कि आज क्या गलत किया और क्या सही किया, और कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है इन टर्म्स ऑफ लाइफ ऑब्जेक्टिव. सिमिलर अप्लाइज टू प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव. क्या नई स्किल आज सीखी मैंने, जिससे मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम, ये वो सब वो अलग हैं, वो सारी बातें अलग हैं. आपका ऑब्जेक्टिव इम्तिहान पास करना नहीं है. मुसीबत ये है कि सारे क्या है, शॉर्ट केस कर लो, बस
लॉन्ग केस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब कुछ ना करो। सिर्फ ये एक बात जहन में रखो कि मैं ऐसा बन जाऊं कि मैं मरीज का मसला, वो सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। और ऐसा हो जाएगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, बिकॉज आप अदर वे राउंड कर रहे हैं, चीज वही हासिल कर रहे हैं लेकिन उल्टे तरीके से। वो सीधे तरीके से हासिल करें और अपने आप को खपा दें इररिस्पेक्टिव कि उससे कोई फायदा है या नहीं है। अपना पूरा दिन गुजार दें, अपने आप को एग्जॉस्ट कर दें, सिर्फ किस चीज के लिए? टू असेस पर्सन्स हेल्थ प्रॉब्लम एंड ऑफर बेस्ट पॉसिबल कि आप उसको किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं बोथ कंपोनेंट में। असेसमेंट कि आइडेंटिफाई करें मसला है क्या, और फिर उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। और यहां तो इतने डिपेंडेंट है आप पे टीम वर्क, क्योंकि हम तो थोड़ी देर के लिए मरीज देखते हैं। इट्स ऑल योर एफर्ट कैन रियली मेक और ब्रेक पेशेंट्स होल लाइक मैनेजमेंट प्लान और वट एवर। जरा सा आप समझदार होते हैं, ठीक से उसको गाइड कर देते हैं, फॉलो अप दिलवा देते हैं, दवाइयाँ सही लिख देते हैं, डिस्चार्ज पे डायग्नोसिस सही कर देते हैं। ये छोटी सी आपकी एफर्ट वुड बी सो बेनिफिशियल फॉर दिस पेशेंट फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। और यही आप उल्टे सीधे सब कुछ कर कर आके बस हवा में छोड़ दिया मरीज को, और फिर वही हवा में ही घूमे जा रहा है बेचारा। तो वो दोनों तरीके से हो सकते हैं। एंड यू विल फाउंड इन अ फीडबैक, ओपीडी में जब आप बैठेंगे, वो पेशेंट जब डिस्चार्ज कार्ड्स लेकर आ रहे होते हैं, ट्रीटमेंट अपनी लेकर आ रहे होते हैं, वो हम या आपने ही किसी ने बनाए या लिखे होते हैं। तो आप कह रहे होते हैं ये क्या लिख दिया, ये क्या किया, क्यों? हवा में किया, ये सोच नहीं थी। इस प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव और ये स्किल ऐसी डेवलप होगी आप सोच नहीं सकते हैं, जब आप हर मरीज पे इस सोच के साथ काम कर रहे होंगे कि मुझे इसको बेस्ट पॉसिबल करके देना है। तो आपकी स्किल ऐसी डेवलप होगी 2 से 3, 4 से 5 मिनट में आप सारी चीजें असेस भी कर लेंगे और सोल्यूशन भी आपके जहन में होगा और आप उसको मरीज को ये कर देंगे। बाकी देखें, एवरीवन डू मिस्टेक्स, बस ये जो मार्जिन ऑफ मिस्टेक्स का एरर मार्जिन कम से कम होता जाएगा। अभी अगर आपका 30% आप कॉन्फिडेंटली ट्रीट करते हैं और 30 to 50% जो है वो ग्रे एरिया में होते हैं और 10% आपको कुछ नहीं समझ में आता, ये आपका कम से कम होता जाएगा। ये एरिया कॉन्फिडेंट ट्रीटमेंट परसेंटेज आपकी बढ़ती जाएगी। और जब भी आप किसी पेशेंट को कॉन्फिडेंटली डायग्नोज और ट्रीट कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली काउंसलिंग का कॉन्फिडेंस कुछ और हो जाता है। और जहां आप ग्रे एरियाज में होते हैं, आप काउंसिल ही नहीं कर पाते मरीज को, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर योरसेल्फ। और ये मरीज का हक होता है। एवरी पेशेंट हु इज डिस्चार्जिंग फ्रॉम हियर फ्रॉम द बेड, दिस इज हिज राइट दैट यू शुड बी टेलिंग what we did, what we are planning for short term and long term। ये इस दाखिले में ये आपका पता चला, हमें ये मसला था और अभी आपको हम छुट्टी दे रहे हैं, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ये कराना है, उसके बाद फिर फर्दर फैसला उसके मुताबिक होगा। तो दैट ही शुड बी, और whoever is discharging from your bed should be clear about his problem। और यहाँ पे आप जिस मरीज से पूछो कुछ बताया ही नहीं, डॉक्टर कुछ बताते ही नहीं है। वो बताने के लिए क्या होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए। और सर्टली आपके लेवल पे ग्रे एरियाज में बात फिर आप काउंसिल ना करें। दैट मीन्स देन डिस्कस विद योर सीनियर फर्स्ट एवरीथिंग। व्हेन यू आर क्लियर अबाउट योर पेशेंट्स डायग्नोसिस एंड प्लान, देन कन्वे इट टू द अदर एंड मेक अ हैबिट दैट नो पेशेंट फ्रॉम योर बेड शुड बी डिस्चार्ज विदाउट नोइंग हिज क्लियर डायग्नोसिस एंड प्लान। उसके लिए आप अपने सीनियर को बेशक ढूंढ के पकड़ के ले आए डिस्चार्ज से पहले कि ये आप क्या प्लान कर रहे हैं, मुझे बताएं, ताकि मैं, और वो उस पर आप, एंड आई सी सम डिस्चार्ज कार्ड इज सो ब्यूटिफुली मेड कि लास्ट 2-3 दिन पहले ही मैंने एक डिस्चार्ज कार्ड देखा है, इतना अच्छा लिखा हुआ डिस्चार्ज कार्ड कि अभी प्राइमरी PCI हुई है, प्लान टू डू स्टेज फलां वेजल इफ सिम्टम, दैट मीन्स दिस पर्सन हैज ट्रांसलेटेड वट एवर द कंसर्न। उसने सही से उसको सोचा समझा और मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सिम्टम उससे पूछे, कोई सिम्टम नहीं है, अब CDVD देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब है ये कहीं मैंने खुद देख के ये बताया था और वो उसने कन्वे कर दिया। पता नहीं वो एक्यूट बेस से था, कहाँ से था। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग बट यू कांट इमेजिन दीज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर पेशेंट्स प्लान एंड एवरीथिंग इज सदका जारिया इन अ वे। आपने उस पेशेंट की ट्रीटमेंट मैनेजमेंट आगे जब भी कोई देखेगा उसके लिए जिंदगी आपने आसान कर दी ना।
कितना आसान हो जाता है जब आप प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं किसी पेशेंट की। अब ये अचीव कैसे होता है प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव? प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था? टू Find the solution, the perfect solution. टू असेस पर्सन's हेल्थ प्रॉब्लम एंड ऑफर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। और अगर जबानी वैसे याद रखें तो यह है कि हर आने वाले का, जो भी आप जिसको भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आप ये फैसला कर सकें कि इसका हेल्थ से रिलेटेड क्या मसला है, क्या इसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है। और दोनों सूरतों में ये नहीं है कि बस कमरे से तुम्हें कुछ नहीं है, जाओ, क्यों बार बार आ जाते हो, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। आइडेंटिफाई करके भी आपने उसको सोल्यूशन नहीं दिया, देन अगेन यू आर एट नॉट अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव। प्रॉपरली गाइड करना कि अल्टरनेटिव, अगर वो दिल का मसला नहीं भी है तो उसको कहां जाना चाहिए, क्या उसके लिए मुनासिब। बाकी फिर अमल करना ना करना वो उसकी जिम्मेदारी। अब हाउ टू अचीव प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, 3 prongs हैं। वो क्या क्या हैं प्रॉपर हिस्ट्री, मैं बताता हूं आपको। नॉलेज, स्किल्स, या हम इस पूरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का ओवरऑल बात कर रहे हैं। हिस्ट्री भी उसका पार्ट आएगा अभी इसमें, किस तरीके से स्किल, और जो 3 चीजें आपने इस पूरी अपनी ट्रेनिंग में अचीव करनी है, ये है। एक नॉलेज है, स्किल्स हैं। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्योर स्किल डिपेंडेंट होती हैं। आपने वो स्किल, आपके पास नॉलेज की भरमार है, लेकिन वो स्किल यू वोंट बेनिफिट योर पेशेंट। इफ यू आर स्ट्राइविंग फॉर अ सर्टेन फील्ड ऑफ मेडिसिन वेयर स्किल्स आर नीडेड, देन यू हैव टू अचीव दोज स्किल्स। वो मैं अभी उस पर भी आता हूँ कि वो स्किल्स बैठ के तमाशा देख के अचीव नहीं होती हैं। उसका एक अपनी साइंस है कि हाउ टू अचीव स्किल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एटीट्यूड। और एटीट्यूड्स क्या हैं? एटीट्यूड सिर्फ एक, क्योंकि वी आर वर्किंग एज टीम, तो एटीट्यूड्स विद पेशेंट, विद अटेंडेंट, विद जूनियर, विद सीनियर, विद कुलीग्स, हर लेवल के एटीट्यूड्स हैं। ये जो मैं इन लोगों को बार बार आप लोगों को भी डांटता रहता हूँ, ये इसी डेवलप करने के लिए कि ये एटीट्यूड्स बिल्ड करने होते हैं। बगैर कहे जेस्चर से आप क्या क्या शो कर देते हैं, और वो एटीट्यूड्स आपके कैरियर में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप सोच नहीं सकते। इट्स ऑल टीम वर्क। सिर्फ आप किसी अपने सीनियर के साथ चल रहे होते हैं, दैट इवन वॉकिंग टेल्स योर एटीट्यूड्स कि आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे। एटीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट है, और एटीट्यूड में खुद ब खुद आपका ऑब्जेक्टिव झलकना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? ये आपका काम है, वो इधर उधर कहीं हो रहा है, लेकिन आपने ढूंढना है कि इसका मसला क्या है और बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। अगर ये आपके एटीट्यूड में झलक गया, आप यकीन नहीं है वो मरीज कभी आपके अलावा किसी को दिखाएगा ही नहीं, नेवर एवर। ये आपने एटीट्यूड, और ये नेचुरल आ जाएगा जब आपका ऑब्जेक्टिव और फिर उस पर लाइफ ऑब्जेक्टिव, जब दोनों चीजें मिला के ये हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ये चीज झलक रही होगी कि आप उसके मसले को ढूंढने के लिए। और why it so happened that some patients haven't told a lot of things to the person who has taken the history, and when I stand and ask few things he tells. क्यों? उसको ये एहसास हो गया कि ये बड़ा डॉक्टर आया हुआ है, इसी ने मेरे सारे मसले, अब वो दुनिया की हर चीज सोचेगा अपने मसले से रिलेटेड। और आप अगर बेड साइड पे खड़े होकर FIR की तरह से उसकी हिस्ट्री ले रहे होंगे, नाम क्या है, कहाँ गए, अच्छा फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, साथ पर्चे भी देख रहे हैं, फिर कर रहे हैं, कभी उधर मुड़ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं उससे, आपने अपना वो इम्प्रेशन खत्म कर दिया। यू हैव टोल्ड योर पेशेंट दैट यू आर देयर जस्ट टू फिल द फाइल्स, यू आर नॉट टू असेस हिज प्रॉब्लम एंड ऑफर। ये चीज जब तक आपके रवैयों से नहीं झलकेगी, मरीज आपसे बात करने को भी तैयार नहीं होगा, ना आपकी बात को सीरियस लेने के लिए तैयार होगा, ना आपकी दवा प्रॉपरली वो लेगा, सारा आपका काम खत्म हो जाएगा।
आपकी बड़ी अच्छी नॉलेज हो, स्किल हो, लेकिन एटीट्यूड खराब हो, तो आप सारे मरीजों को सेटिस्फाई कुछ को कर पाएंगे, क्योंकि आप हर बार वो एटीट्यूड झलक जाता है इंसान की रवैयों से कभी ना कभी। और कोई भी आदमी फरिश्ता नहीं है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल के बावजूद भी आप कोई लम्हे ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप ऐसा एडवर्स एटीट्यूड दिखा देते हैं जिससे, लेकिन इसको बहुत ख्याल रखना होता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, नॉलेज के 3 पार्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक है रिकॉल, फिर इंटरप्रिटेशन, अभी आपकी हिस्ट्री आएगी, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारा आपका सारा जोर किस पे है? ये जो आपने इतनी सारी गाइडलाइनें याद की भी होती हैं, दिस इज कॉल्ड जस्ट रिकॉल, मेमोरी बिल्ड करना, कि आपको उस दुनिया भर की चीज़ें पता हैं कि ये फलां कंडीशन में ये किया जाता है, फलां कंडीशन में ये किया जाता है, फलां कंडीशन में ये किया जाता है। दिस इज प्योर रिकॉल। याद रखिए, इसकी आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और सोल्यूशन में 5 to 10% ज़रूरत होती है। आपका जोर 80 to 90% इस पे लगा हुआ है। इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन मरीज से डाटा गैदर करना, अपनी रिकॉल जो आपके पास मौजूद है इन रिलेशन टू हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, फाइंडिंग है, स्पेसिफिक कंडीशन की रिलेटेड स्पेसिफिक या इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग फीचर्स हैं, उससे उसको मिलाना। और ये चीज आपने अचीव कर ली ना, कि आपका माइंड इस तरह चलने लग गया, ये आपको गाइड देगी यहां पे। ये स्किल आपने नहीं सीखी, और ये वाली जो इंटरप्रिटेशन स्किल है, ये लेक्चरों में नहीं सिखाई जा सकती, क्लासेस में नहीं सिखाई जा सकती, ये सिर्फ बेड साइड पे सिखाते हैं और आप खुद सीखते हैं। इसमें सिर्फ आपको सीनियर थोड़ा सा गाइड, सोचने के तरीके चेंज करना वो दिखाता है, और फिर आपकी एंटरटेनिंग थॉट्स होती हैं कि आप, क्योंकि ये याद रखिए, इवन इस इंटरप्रिटेशन में बड़े बड़े स्पेशलिस्ट में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। सेम इंफॉर्मेशंस के साथ एक आदमी इसको कुछ और कहेगा, दूसरा आदमी कुछ और कहेगा। यही सारी टोटल सारा काम यहां इंटरप्रिटेशन में, कि हाउ यू व्हेन यू आर मर्जिंग द फैक्ट्स विच यू हैव गैदर्ड फ्रॉम योर पेशेंट। और इन फैक्ट्स में सिर्फ हिस्ट्री नहीं होती है, सब चीजें, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन फाइंडिंग प्लस इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग, इन सबको मिला के, क्योंकि कहीं पर भी ना हिस्ट्री में कोई चीज ऐसी है जो टोटली इन और आउट कर दे, ना एग्जामिनेशन में ऐसी चीजें बिल्कुल है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं विच आर कैटेगोरिक ऑफ अ सर्टेन कंडीशन, वरना आपको हर जगह ओवरलैप मिलेगा व्हेन यू कंबाइन ऑल दीज फीचर्स, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस। इन सबको मिला के आप जब कुछ एक मरगूबा बना रहे होंगे, तो अब उस इंटरप्रिटेशन में ये आपकी वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होती है कि आप किसको कितना वेट देकर चीज़ों को मिलाकर और फाइनल कंक्लूड करते हैं कि इसका मसला ये हो सकता है और इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है। यू हैव सीन अ पेशेंट हियर राइट नाउ, आई हैव सीन इन द मॉर्निंग अ पेशेंट हु हैड अ ब्रेडिकार्डिया लास्ट इवनिंग. He was my known patient, I know him. He's there since he was having slight angina. Previously, I haven't put him on beta blocker. He has interventricular conduction defects, but he was in sinus rhythm for years. 60-70 के around इनका rate रहता है. Post cabbage थे, so he had some angina. So I started a very low dose beta blocker, which he tolerated for 6, 7, 8 months. In last evening, he had slight nodal rhythm, an AV block, even with escape rate of 40-50 without any symptoms. And last evening I saw him in ER, they were putting in TPM. Is there any need for TPM in an asymptomatic patient? तो ये जो solution interpretation गलत थी, because किसको treat कर रहे थे? सिर्फ ECG को, patient को treat नहीं हो रहा था। ये
पीपी आर्म सब आप उस सूरत में लगाते हैं जब किसी रिदम की वजह से हीमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं. दिस पेशेंट मे नीड परमानेंट पेसमेकर इन फ्यूचर और इवन इन दिस एडमिशन. अभी जैसे मैंने इनको एडमिट किया और इनको अब मैंने आज हिस्ट्री कॉम्प्रिहेंसिवली कई पिछले 3-6 महीने से कोई एंजाइना नहीं है. सो आई थिंक देयर इज नो नीड टू गिव बीटा ब्लॉकर टू दिस पेशेंट. सो आई जस्ट आर discharged today him without beta blocker. His right now rate is around 60-70, which was there for years. He may subsequently develop this conduction problem, may need pacemaker in future. Or secondly, I have counseled him, if you have angina, then I have to put in a pacemaker with beta blocker. But this will be a permanent pacemaker, not temporary pacemaker, because temporary pacemaker is needed only when you have hemodynamic compromises. वो डाल के आप क्या कर लेते. इसमें डिसीजन ये था क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक था, ब्लॉक था, ये फैसला करना था परमानेंट डालना है या नहीं डालना. दैट्स इट. और वहां टोकन तैयार था और ये पेसिंग लैब में जाने के लिए तैयार था. Why nobody ever thought at any level कि पेशेंट के लिए क्या होना चाहिए. ये वो जगह है इंटरप्रिटेशन जहां डिफरेंस होंगे ओपिनियन के और आपको एक चीज को वेट ज्यादा देना होगा, एक को कम देना होगा. अब इन्वेस्टिगेशन कह रही थी कि पेसमेकर डलना चाहिए, लेकिन सिम्टम कह रहे थे कि पेसमेकर की जरूरत, तो आपने उनको वेट दिया ना, क्योंकि आप जितनी गाइडलाइन और फिर उन गाइडलाइन को इंटरप्रेट करना भी डिपेंडेंट है कि आपने यहां के फैक्ट्स को किस तरह गैदर किया है, तब आप गाइडलाइन अप्लाई कर सकते हैं. ये स्किल सिर्फ बेड साइड पे सीखी जा सकती है जब आप खुद अपने तौर पे मरीज की इंफॉर्मेशन गैदर करें और अपने तौर पे फैसले करें. हो सकता है गलत करें और फिर आपको कोई सीनियर गाइड करे कि नहीं, ये चीज के मुताबिक ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था. और उसमें हो सकता है हम भी गलती, हो सकता है मैं किसी और से पूछूं तो मुझसे भी कोई गाइड मिल जाए. और ऐसा होता है बहुत से पेशेंट्स में, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा होता है. तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि कब आप समझ रहे हैं कि फैक्ट्स ऐसे हैं जिनका आपको जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन या डेटा है उसमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है. देन यू नीड हेल्प ऑफ सीनियर, हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एंड देन गो फॉरवर्ड विद दैट. ऐसा कई मर्तबा होता है. कैथ में बहुत से ऐसे रीजन होते हैं, कुछ होते हैं जो हमें भी उस वक्त ग्रे एरिया लग रहा है, तो वी टेक हेल्प ऑफ आवर सीनियर्स कि भाई इसमें क्या करना चाहिए. लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि आप जो करते हैं वो बिल्कुल ठीक है और करके बिल्कुल फाइनल ठप्पा लगा देते हैं, ये सबसे डेंजरस डॉक्टर है जिसको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट उसमें नहीं होती. वो अपने फैसलों पे करते हुए सोचता नहीं है कि पता नहीं ये सही है या गलत है. और फिर देखिए, आप अपने आप को जब भी वे कर रहे होंगे आपको खुद पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल सही मैं डिसीजन कर रहा हूं, ये मैं ग्रे एरिया में हूं और इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो अपना थ्रेशोल्ड फॉर टेकिंग हेल्प कम से कम रखें कि जहां जरा सा भी डाउट लगता है सीनियर से हेल्प लेनी है. उससे फिर आपकी ये इंटरप्रिटेशन स्किल बढ़ती जाएगी और आप देखें कि उसने क्या किया, किस बुनियाद पे. और ये आपकी सारी बेड साइड की कहानी होती है कि अगर आप राउंड से पहले अपने हर मरीज का ये फैसला करके रखें. इसीलिए मैं अब आपसे सवाल क्या करता हूं, मैं ये आपके रिकॉल नहीं सुनना चाहता कि दिस पेशेंट दिस, ये सब कहानी है, पता है, आप लिख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है. मैं इसको पहले आपसे सवाल करता हूं, मसला क्या है, व्हाट्स द डायग्नोसिस. दिस इज योर, कि आपने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और अभी सोल्यूशन पे हम जा नहीं पाते. इससे मैं फिर वापस, जब आप कहते हैं तो फिर मैं इससे वापस यहां पर आता हूं. वाई का जवाब यहां पर है कि आपने क्या इंटरप्रेट किया था, और इसका जवाब डायग्नोसिस का ये है, प्रॉब्लम आपने क्या आइडेंटिफाई किया. और ये आपने अचीव करना है, क्योंकि याद रखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू असेस पर्सन्स हेल्थ प्रॉब्लम एंड ऑफर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन. ये आप नहीं कर पाए और इसमें आपको दुनिया की लाइब्रेरियां याद हो गई, तो मरीज के लिए आप किसी काम के नहीं हैं. इस पे वर्क करना है कि आप में एक बेहतरीन इंटरप्रिटेशन आनी शुरू हो जाए और आप बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मरीज के देख सकें. फिर आप जब ये कर रहे होंगे ना, तो आपको पता चलेगा खुद के क्या चीज याद रखने की है और क्या चीज याद रखने की. इस रिकॉल में कुछ बातें ऐसी होती हैं
जो पक्की याद रखने की हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद पे आप यहां पे फैसले कर रहे हैं। भाई वेल्वुलर एसिम्प्टोमेटिक है, उसके डायमेंशन आपको याद होने चाहिए पक्के, ताकि आप एसिम्प्टोमेटिक भी है तो अब ये स्टेज आ गई, इसको सर्जरी के लिए जाना है, तो ओपीडी में आपके पास टाइम नहीं होगा, आपने वो एको रिपोर्ट देख के और फैसला करना है कि सर्जरी करनी है या। ये जब आप इस पे काम कर रहे होंगे तो आहिस्ते आहिस्ते आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा खुद ही कि वो कौन सी रिकॉल्स हैं जो पक्की याद होनी चाहिए। और जब आप पढ़ते हैं अपना लिटरेचर तो ये वो बातें हैं जो पक्की तरह जहन में रख लेनी। इस पे वर्क करें, खुद सोचें कि क्या आप ये अचीव कर पा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं, सोल्यूशन दे पाते हैं। और फिर इस एरिया में जब आप लर्निंग फेज में हैं तो अपने माइंड को ओपन रखें फॉर थॉट्स, एंटरटेन रखें, कभी अपने उस पे अड़ ना जाएं कि जो मैं सोच रहा हूं वो ठीक है, बाकी सब गलत है। बाकी सारे ऑप्शंस एंटरटेन करके उनको उसी तरह वे करें। अगर आपका कोई साथी करे नहीं मुझे ये लग रहा है, तो अभी ये नहीं करें कि ये कोई आपकी अना की जंग हो गई, अब उसके एनालाइज करें उसके क्या किन बातों पर वो ये कह रहा है, और फिर अपने इंटरप्रिटेशन के जो आपने क्लूज बनाए थे उनको फिर वे करें और फिर जज करें खुद कि हाँ यार ये ठीक हो सकता है, क्योंकि ये मैं इस चीज को ये समझ रहा था, ये ऐसे नहीं ऐसे है। और ये सारी कहानी यहां पर है आपकी। ये आपने अचीव कर ली ना प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर अगेन प्रॉब्लम सोल्यूशन में रिकॉल आता है। लेकिन जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगा तो वो रिकॉल किस काम का, कि आपको सबकी डोजेजेस याद हैं, सब चीजें याद है, लेकिन आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं हुआ। और फिर वक्त के साथ वो तो ये तो भी सिर्फ बेसिक बातें हैं, इवन कार्डियोलॉजी में लम्हों में ये चेंज हो रही होती है, इंटरप्रिटेशन और प्रॉब्लम बदल रहा होता है, घंटों में मिनटों में चेंज हो रहा होता है। तो आपको शिफ्ट होना होता है अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट पे कि इस वक्त क्या करना है। सेम मरीज, उसके लिए बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी 15 मिनट पहले और चेस्ट क्लियर हो गया तो अब इंडिकेटेड होगी, और बॉर्डर पे है तो अब ये आपकी सब्जेक्टिव जजमेंट होगी कि चेस्ट में उसको एंजाइना भी हो रहा है, रेट बढ़ा हुआ है और चेस्ट में थोड़े से क्रेप्ट्स भी हैं। अब ये कह रहे हैं कि नहीं पूरे क्रेप्ट्स हैं, ये कह रहे हैं कि आधे क्रेप्ट्स हैं, ये कह रहे हैं नहीं बेस पे क्रेप्ट्स हैं। तो अब ये लग भी सकता है जो उसको फायदा भी देगा, और फायदा इतना देगा कि एंजाइना खत्म हो जाएगा उसका, और नुकसान इतना देगा कि फेलियर और शॉक में चला जाएगा। ये सब कहां पे आएगा? इस इंटरप्रिटेशन से कि किस मरीज के साथ कौन सी चीज किस वक्त करनी है। तो इन 3 पार्ट्स पे बहुत काम करना है। ये फिर हम राउंड में आपका जज करेंगे कि आपने क्या किया इस पे। अब मैं स्किल पे आता हूं। स्किल में भी क्या होता है, वो लोग स्किल नहीं सीख पाते जो तमाशा देखते हैं। याद रखिए, स्किल के लिए क्या होता है, पानी में कूदना होता है। इस खौफ के बगैर कि ये मुझसे नहीं होगा, ये खौफ जहन में नहीं होना चाहिए, मुझसे होगा। जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ कोई स्किल करने, और स्किल का तरीका ये कि उससे पहले यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, और उसकी पूरी टेक्निक्स होती हैं। अब तो बहुत आसानी है, यूट्यूब पे वीडियो हैं और सारी चीज़ें हैं। सो बी प्रिपेयर। ऐसे हवा में जाके बस कोई आपको शीट डालने का कह रहा है तो पता ही नहीं है कि क्या करना होता है, क्या नहीं, बस देखा किसी को करते हुए और कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग एंड देन गो विद द कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर लूंगा, मुझसे हो जाएगी। और फिर उसमें आपको वो एरर पता होने चाहिए कि कहां तक आपकी लिमिट है। थ्रेशोल्ड बहुत लो रखें दूसरे को कॉल करने का। और ये स्किल स्टार्ट होती है एग्जामिनेशन स्किल से, कैनुला लगाने से, हर चीज। ये स्किल जितनी आप अच्छी अचीव करेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये फायदा देगी। और इसका कोई दो यानी इसमें वो रवैये नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस। एक लॉजिकल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के साथ रिपीटेड करना, और फिर उसमें फिर सेल्फ इनोवेशन डेवलप करना कि बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है। आप हैरान होंगे, हमारे साथ एक कंसल्टेंट थे, प्रोफेसर अब्दुल हक का नाम किसी ने सुना होगा, अभी वो डेथ हो गई उनकी। वो शीत ऐसे डालते थे, फिमोरल शीत, कि एक कतरा ब्लड का नहीं गिरता था। अब ये सोच सकते हैं कैसे डलती होगी कि ब्लड का कतरा वहां नहीं गिरेगा। भाई आप जब पंक्चर करेंगे नीडल से तो ब्लड का स्पर्ट तो आएगा ही आएगा,
सोचे कैसे डलती होगी, ये उनकी अपनी इनोवेशन थी। और उनको ब्लड पड़ा हुआ नहीं अच्छा लगता था। व्हाट ही यूज्ड टू डू, जो पंक्चर नीडल होती थी उसको वो एक सिरिंज में लगाते थे। वो जो गाइड वायर होती, वो वायर जो अंदर आप डालते हैं आफ्टर प्रिक, वो वायर उस सिरिंज के बिल्कुल मुंह पे ऐसे पड़ी हुई होती थी उसके डायलेटर के साथ। वो उससे यूं डालते, ब्लड का स्पर्श सिरिंज में भरना शुरू होता था। वो साफ अंदाजा होता था कि दिस नीडल इज इन आर्टरी, क्योंकि वो बड़ा तेजी से ब्लड का स्पर्ट आया। जैसे ही वो थोड़ा सा ही आया, उन्होंने वायर एंटर्स हो जाती थी वहां से ल्यूमेन में। अब वायर जैसे ही एंटर हो जाती है तो फिर ब्लड आना बंद हो जाता है। अब वो उसको गाज के साथ लगा के आराम से निकाल के रख देते थे, एक कतरा ब्लड का नहीं उस पे। इसके बाद उस पे वो शीट चढ़ गई। ये उनकी अपनी इनोवेशन थी कि इस तरह करनी है। वो हमने भी ट्राई किए, कुछ बहुत अच्छी आर्टरी होती है तो कर लेते हैं, वरना दैट नीड्स प्रैक्टिस, कि वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगी ना। क्योंकि इसमें अब आपको बहुत ही स्किलफुल होना चाहिए कि कब आपकी नीडल आर्टरी में चली गई, क्योंकि वो नीडल में जो ब्लड भरना शुरू होगा उसको बड़ा गौर से देखना है कि कब इतना प्रेशर से आ रहा है कि हाँ वाकई आपकी नीडल आर्टरी में, तब आप वो वायर अंदर करें। जस्ट मैं एक वो बात करूँ कि एक अपनी उनकी इनोवेशन थी, स्किल का ऐसा लेवल डेवलप कर लिया था। तो स्किल में इसमें मुझे याद नहीं आ रहा, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, ये पहला स्टेप होता है। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, ये क्या है कि दुनिया में कोई चीज स्किल मौजूद है, आपको पता ही नहीं है भाई ये कोई चीज है, कोई करता होगा, हमें क्या पता। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, अब आपको पता चला कि ये एक स्किल है जो आपको नहीं आती। दिस इज सेकंड स्टेप, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। फिर चौथा स्टेप होता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, कि आप अचीव कर रहे होते हैं लेकिन बड़ा ही कॉन्शियस रहते हुए काम कर रहे होते हैं। और स्किल में एक लेवल आ जाता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस मेराज है स्किल की, कि अब वो काम किस पे लेवल पे हो रहे थे, स्पाइनल लेवल पे, सोचना। और ये हर आदमी ये अचीव कर सकता है कि उस कॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे जब आप रिपीटेड करते रहेंगे तो एक वक्त आ जाएगा कि आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस का लेवल अचीव कर लेंगे। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस क्या होता है, मैं बात उससे कर रहा हूं, काम भी कर रहा हूं, वो चल रहा है और तेजी से अपना काम कर भी लिया, क्योंकि अब मेरे स्पाइनल लेवल्स पे जब बस कहीं पे मैं फंसूंगा तो फिर अब मैं सोचूंगा, देखना शुरू करूंगा। वरना सिर्फ जस्ट एक झलक देखी ये किया और वो। इसकी मैं से एग्जांपल देता हूँ, एक किसी बढ़ी को आपने टेबल बनाते या कुछ फर्नीचर बनाते हुए देखा, वो जो एक्सपर्ट आदमी होता है वो कैसे काम कर रहा होता है, फौरन बन के चीजें साइड पे रख रहा हो। जो अभी नया होगा वो, यानी वही एक टेबल वो पता नहीं कितनी देर में बनाएगा और वो पता नहीं। तो ये स्टेप्स होते हैं। और वो स्किल्स का मैं हमेशा कहता हूं शर्माना नहीं है, और कोशिश करनी है जितना ज्यादा आपको खुद फिजिकली काम करने का मौका मिले। जब आप किसी स्किल ट्रेनिंग में, जब आप इस खौफ से कहते हैं ना छोड़ो यार इसको कर लेना, ये कर ले, मैं क्यों करूं ये, तो फिर आपने खुद ही वो अपना सिर्फ लाइफ ऑब्जेक्टिव भी कॉम्प्रोमाइज किया, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव भी कॉम्प्रोमाइज किया, और स्किल ट्रेनिंग के जो आपके पास चांसेस थे वो आपने 2 साल ऐसे ही गुजार दिए। कैथ में मैं देखता हूँ लोग आते हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, उधर। ओ भाई ये पीरियड तुम्हारा लैब के अंदर का पीरियड था, कि कुछ नहीं होता है, एक स्क्रब पेन के अंदर खड़े हो जाओ, वही सिखा देगा। फिर उसमें मौका खुद मिलता है। आप ये जब सोच रहे थे ना कि यहां मेरा काम तो ये नहीं है, इसकी जगह मैं लाइब्रेरी में जाके थोड़ा सा पढ़ लूं, ये सारी गड़बड़ यही काम करती है। ऑब्जेक्टिव आप भूल जाते हैं, आप रिकॉल के चक्कर में जाके, भाई स्किल सीखना, स्किल की हर एस्पेक्ट सीखना होता है। किसी की गलती भी आपको सिखाएगी, तो वो गलत होता हुआ भी देखोगे तो जिंदगी भर के लिए एक वो रह जाता है। तो बहरहाल, और चौथी चीज, तीसरी सबसे अहम चीज है एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स में हर लेवल पे, हर जगह पे, जब जहां पे भी आप होंगे, स्पेशली यहां हमारे मुल्क में रहते हुए, सबमिसिव एटीट्यूड। जब भी आप कन्फ्रंटेशन रखेंगे अप्रोच में, फंसेंगे, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो कुलीग हो, मुसीबत ही मुसीबत है। सिर्फ हमेशा सबमिसिव, कभी भी हेड ऑन कोलिजन किसी से नहीं लेना। मरीज से भी गैर जरूरी की बहस, उसको भाई उसकी बात मान लो,
मैं कभी कभार बहुत गैर ज़रूरी बातें कि वो मरीज़ कह रहा है कि मुझे अंजाना होता है, अब आप बिला वजह बहस में पड़ गए, तुम्हें किसने बताया अंजाना होता है, अब वो एक बहस उसमें चल रही, बस ठीक है सुन लो, पता है कि ये मिस इंटरप्रिटेशन है, एक बस सेल्फ मेड चीज़ है, क्यों बिला वजह उससे हम बहस करें कि भाई क्यों हुआ है। आप अभी का उसका मसला सुने और उसका बहुत से और सी उल्टी बातें करेंगे। डॉक्टरों को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, जब उसके सामने किसी और डॉक्टर की तारीफ मरीज कर दे, वही कर या आपकी किसी स्ट्रेटजी को वो गलत कह दे, कोई बात नहीं, कहने दो, उसका हक है। बहुत से मरीज स्टार्ट ही ऐसे कहते हैं, डॉक्टर साहब ये आपने दवाइयाँ दी हैं, एक का फायदा नहीं हुआ है, आपके तो तन बदन में उसी वक्त आग लग जाती है। अच्छा फिर आप पूछोगे क्या हुआ है, बस डॉक्टर साहब बस कब्ज रह रहा है, सर में दर्द है। भाई मैंने इन चीज़ों की दवाई थोड़ी दी है तुम्हें मैंने तो किसी और, लेकिन इसमें आपने कभी भी मरीज से एग्रेसिव नहीं होना है। सुने, अपना ये टॉलरेंस लेवल बहुत बढ़ा के रखें, जिस हद तक जहां तक भी सुनना है। फिर आप जब बात करेंगे तो ऐसे ऐसे वो सारा कुछ रेक्टिफाई, और एक ऑब्जेक्टिव आपके जहन में हो, मसला आइडेंटिफाई करना और उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो इसके लिए बेहतरीन हो। एक मरीज है उसमें मैं 10 टेस्ट करा सकता हूं, एक मरीज है उसमें मैं एक टेस्ट भी नहीं करा सकता। हर इंडिविजुअल का मैनेजमेंट प्लान अलग होता है, ये आप हर में अपनी गाइडलाइंस अप्लाई नहीं कर सकते। उसके पास खाने के पैसे नहीं होते तो फिर किस पे आपने फैसले करने होते हैं, अपनी क्लिनिकल जजमेंट पे, स्किल पे। तो आपके पास हर वो तरीका मौजूद होना चाहिए जिससे आप उसका बेस्ट पॉसिबल असेस भी कर सकें और सोल्यूशन भी दे सकें। ठीक, एनी क्वेश्चन, कोई भी जहन में सवाल हो? जी जी, जहन में कोई भी सवाल हो फिनिश कर सकते हैं इसको। जी